Hello students and welcome back again in your geography class. I am Anand Pandey, your geography teacher. And students, I hope all of you fine and healthy at your home. Now students, in this video session we are going to start the new chapter, and this is the chapter number 8 or the last chapter of your geography book, and it is about the case studies. Now in this chapter we are going to follow the two case studies. Number 1 is the lumberjacks of the Canada, and number 2 is the life in the Amazon basin. So first we are going to start the lumberjacks in the Canada. So now students, you see that the introduction part of this chapter. In the earlier chapter we studied about the geographical features of the continents of North America and South America. In this chapter we will look at the two case studies that illustrate how the geography of these continents affect the lives of the people living there. The first case study looks at the work of the lumberjacks of Canada. The next is study life in the Amazon basin. So now first students, the introduction that is now telling us about the case studies. So now in the previous chapters we learned about the geographical features of the continents like the North America. Now just we are going to understand how these geographical features affect the people of these continents that they are living in that particular continents. Now first that we are going to start, this is the lumberjacks in the Canada. So now first we are going to understand the lumbering is the cutting down of trees and their transport to the market. लंबरिंग का मतलब होता है बेटा पेड़ों का काटना और उनको मार्केट तक पहुंचाना. लंबरिंग इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इन द टैगा. टैगा means it is a climatic condition. Taiga means it is a climate. It is a type of climate. In the next paragraph, I will tell you about the taiga. The belt of the coniferous trees that stretches across the northern part of Canada, North America. Lumbering means the cutting down of trees and the transport to the market. Lumbering का मतलब बेटा होता है कि पेड़ों का काटना और उन्हें मार्केट तक पहुंचाना. लंबरिंग जो है एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है टैगा में. द बेल्ट ऑफ द कॉनिफेरस ट्रीज, यहां पे कॉनिफेरस ट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं जिन्हें काट के लंबरजैक्स जो हैं वो मार्केट तक उन्हें पहुंचाते हैं. दैट इज नाउ इन द कनाडा कंट्री जो कि नॉर्थ अमेरिका में है. द कूल एंड शॉर्ट समर्स ऑफ द टैगा आर नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. क्योंकि टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट बेटा जो होता है वहां पर सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं और गर्मियां वहां पे बहुत कम पड़ती हैं, इसलिए वहां पर खेती करना मुश्किल होता है. खेती करने का मतलब जैसे वीट का एग्रीकल्चर, वीट कल्टीवेशन हो गया, राइस कल्टीवेशन हो गया या अदर क्रॉप का कल्टीवेशन वहां पे बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ज्यादातर जो फील्ड्स होती हैं वो स्नो से कवर होती हैं. इसलिए वहां पर लंबरिंग ही एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है. Therefore, in this sparsely populated region, the people depend on lumbering and the trapping of the economic substance. इसीलिए यहां पर ज्यादातर लोग पेड़ों के काटने और उन्हें मार्केट में ले जाके बेचने जैसे काम में लगे रहते हैं. Now, in the Canadian taiga, coniferous trees grow in pure stands. Pure stand का मतलब जो कैनेडियन टैगा क्लाइमेट में होते हैं कॉनिफेरस ट्रीज वो सीधे एकदम लंबे लंबे पेड़ होते हैं. दिस मीन्स द सिंगल स्पीसीज ऑफ ट्रीज डोमिनेट्स अ लार्ज एरिया, दस मेकिंग इट इजियर टू एक्सप्लॉइट देम कॉमर्शियली. और ये बहुत लार्ज एरिया में फैले हुए होते हैं जिसे हम लोग आसानी से वहां के लोग काट के मार्केट में कॉमर्शियली मतलब कि बेचने के पर्पस से उसको आगे बढ़ाते हैं. नाउ लंबरिंग, नेक्स्ट यू सी दैट नाउ दीज आर द कॉनिफेरस ट्रीज दैट आर स्प्रेड ओवर द टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन इन द कैनेडा. ओके,
Now, lumbering is carried out in two regions of Canada, the states of the Quebec and the Ontario, in the east of British Columbia, in the west. तो जो लंबरिंग है वो कनाडा के दो रीजन्स में फैला हुआ है, एक क्यूबेक में और एक ओंटारियो, इन द ईस्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, इन द वेस्ट. Lumbering in Canada is done by the highly skilled forest workers called the lumberjacks. जो पेड़ों के काटने का कनाडा में लोग होते हैं वो बहुत ही स्किल्ड होते हैं, वो वेल ट्रेंड होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि किस तरीके से मुझे पेड़ों को काटना है. और जो इस तरीके के हाईली स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उन्हें हम लोग लंबर जैक के नाम से जानते हैं. Those are called the lumberjacks. द लाइफ ऑफ अ लंबरजैक इज हार्ड वन. अगर हम लोग बेटा उनके जीवन की बात करें तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. टिल रिसेंटली लंबरिंग वॉज कैरीड आउट ओनली इन द विंटर व्हेन अ सैप फ्रॉम द ट्रीज सीज टू द फ्लो. द ग्राउंड वॉज कवर्ड इन स्नो एंड द रिवर फ्रोज. अ कैंप वॉज सेट अप विद इन द फॉरेस्ट. वहां पे जब सर्दियां ज्यादा चालू हो जाती हैं, सारी जमीन बर्फ से ढक जाती है, रिवर का पानी जम जाता है, तो उस कठिन समय में लंबरिंग का काम स्टार्ट होता है. द बिल्डिंग्स वर बिल्ट अप विद द लॉक्स. जो बिल्डिंग्स होती हैं वो लॉक्स की बनी होती है, मतलब कि जो पेड़ का लकड़ी कटने के बाद उन लकड़ियों से बनी होती है. द लंबरजैक्स अराइव्ड एट द कैंप फॉलोइंग ऑन द ऑनसेट ऑफ द विंटर्स. दे रिटर्न द समर व्हेन द लंबरिंग सीजन वॉज ओवर. वो जाड़ों में आते हैं और गर्मियों में वापस चले जाते हैं. Nowadays lumbering is not limited to just the winter seasons. लेकिन अब अगर आज की बात करें तो लंबरिंग जो है वो खाली विंटर्स के लिए नहीं है, अब वो ऑल वेदर कंडीशंस में काम हो रहा है. Thus the lumberjacks are employed all around the year. इसीलिए पूरे साल जो है lumberjacks employed रहते हैं, उनके पास पूरे साल काम रहता है और वो पूरे साल काम करते हैं. The camps have become bigger and better and now support settled communities of worker. अब जो कैंप्स हैं वो बहुत बड़े हो चुके हैं, बेटर अच्छे हो चुके हैं, वहां पे और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो चुकी है. एंड नाउ सपोर्ट सेटल कम्युनिटीज ऑफ वर्कर्स, वहां के कम्युनिटीज वर्कर के सपोर्ट के थ्रू. Now you see that in this picture a lumberjack is cutting down the tree with the help of the machine. Now communication system have improved and the lumberjacks do not feel isolated and cut from their families as they once used to. अब वहां पर कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो चुका है. मींस अब जो लंबरजैक्स हैं वो अपने आप को वहां अकेला फील नहीं करते हैं, क्योंकि वो 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने वहां पर रुक के काम करते हैं. तो कम्युनिकेशन के थ्रू अपने घर से भी बात करते हैं, अपने घर वालों से भी बात कर लेते हैं, जिससे कि वो आइसोलेटेड फील नहीं होते, मतलब अलग थलग अपने आप को फील नहीं करते हैं. नाउ बिफोर स्टार्टिंग वर्क द lumberjacks सर्वे द एरिया वेयर द felling विल टेक प्लेस. पहले क्या करते हैं लंबरजैक्स, जहां पे उनको पेड़ काटना होता है वहां पे वो जाते हैं, एक टीम बनाते हैं, वहां सर्वे करते हैं और देखते हैं कि वहां का प्लेस कैसा है, पेड़ों की कंडीशंस क्या है. इस तरीके से वो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं. द मैच्योर ट्रीज आर आइडेंटिफाइड. जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो मोटे पेड़ होते हैं, उनको आइडेंटिफाइड मतलब उनको पहचान लिया जाता है. एंड ट्रैक्स एंड रोड्स आर अकॉर्डिंगली मेड विद द फॉरेस्ट. और जहां पे सड़कें नहीं होती हैं वहां पे सड़कें बनाते हैं, वहां पे आने जाने का रास्ता बनाते हैं, जिससे कि इजिली पेड़ को काटने के बाद वो मार्केट तक पहुंचा सके. The actual process of the felling the trees and transporting the timber requires great skill. जो एक्चुअल प्रोसेस की बात करें वो पेड़ का काटना होता है. पेड़ को ट्रांसपोर्ट करने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह, टिम्बर मीन्स लकड़ियों को पहुंचाना ही मुख्य कला होता है. The lumberjacks are classified into 4 groups depending on their nature, their work. जो lumberjacks होते हैं बेटा उनको 4 ग्रुपों में डिवाइड किया जाता है और उनके वर्क क्या होते हैं. Now we are going to understand about this paragraph. Now these are the process of the lumbering. तो हम लोग 4 टीम्स के बारे में जानेंगे कि लंबरजैक्स की वो 4 टीम्स कौन कौन सी होती है. हाई रिगर्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, हाई रिगर्स. ये भी लंबरजैक्स होते हैं.
हाई रिगर्स हैव द रिस्की जॉब ऑफ फेलिंग ट्रीज। हाई रिगर्स का जो काम होता है बहुत रिस्क भरा होता है, क्योंकि उनको पेड़ को काटना होता है, नीचे गिराना होता है। आफ्टर हैविंग सिक्योर्ड देमसेल्फ टू द ट्री विद अ सेफ्टी बेल्ट, वो अपने आप को सबसे पहले पेड़ के ऊपर चढ़ के एक सेफ्टी बेल्ट से बांध लेते हैं। दे क्लाइंब अप द ट्रीज विद द सॉ, वो पेड़ को काटने वाली मशीन जिसको हम लोग सॉ बोलते हैं, और एक्स मतलब आरी और कुल्हाड़ी के साथ वो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। विद कटिंग द ब्रांचेस, और वो पेड़ की ब्रांचेस को काटने का काम वो करते हैं। When they have nearly reached the top, जब वो टॉप पे पेड़ पे पहुंच जाते हैं, they fell the narrow top of the tree, और सबसे पहले वो पेड़ के सबसे ऊपर वाले पतले वाले भाग को काट देते हैं। Then they attach a cable to upper part of the tree, और वो अपर पार्ट केबल, एक केबल उस पे बांध देते हैं, पेड़ पर सबसे ऊपर जाकर बांध देते हैं। एंड क्विकली क्लाइंब डाउन, और जल्दी से नीचे की तरफ आते हैं। द केबल इज सिक्योर्ड टू द ग्राउंड, उसे ग्राउंड के साथ बांध दिया जाता है। टू कंट्रोल द डायरेक्शन, और उसको जिस डायरेक्शन में पेड़ को नीचे की तरफ गिराना है उस तरफ की तरफ उसको लगा देते हैं। एंड द ट्री इज कट एट देयर बेस, और ट्री को उसको जड़ से काट दिया जाता है। दे यूज मॉडर्न इक्विपमेंट, वो मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। लाइक पावर ड्रिवन सॉ, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक आदमी जो पेड़ काट रहा है तो उसके हाथ में पावर ड्रिवन सॉ है, आरी मतलब जो एक इलेक्ट्रिकली या मशीन है जो पेड़ को काट देती है, इंस्टीड ऑफ एक्सेस, कुल्हाड़ी के बजाय। द केबल इज फाइनली पुल्ड टू ब्रिंग द ट्री डाउन सेफली, और आधा काटने के बाद दो तीन लोग मिलके उस केबल को जो सबसे ऊपर बांधा गया था उसको मिलकर वो धीरे धीरे खींचते हैं, जिससे कि पेड़ आसानी से गिर जाए। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द सॉयर्स एंड द बकर्स। अब सॉयर्स और बकर्स टीम की बारी आ गई। हाई रिगर्स के बाद अब दूसरी टीम आ गई। अब दूसरी टीम क्या करती है देखते हैं। After the trees have been felled, the sawyers and the buckers take over. जब पेड़ नीचे गिर गया तो सॉयर्स और बकर्स की टीम उस पे काम करना शुरू कर देती है। द लेफ्ट ओवर ब्रांचेज आर रिमूव्ड विद द पावर ड्रिवन सॉस, जो उसकी बची कुछ ही ब्रांचेज होती हैं उनको पावर ड्रिवन जो है वो काट के गिरा देता है। द ट्रंक इज देन बग, और जो ट्रंक होता है उसको भी काट दिया जाता है, और कट इनटू द रिक्वायर लेंथ, जितनी जरूरत होती है जिस लेंथ की उस लेंथ में उसको काट के गिरा दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट द स्कीडर। After bucking, the skidder used the tractors to pull bundles of logs along the skid track out of the forest. The logs are collected on the bank of the frozen rivers. A rail track or the road, the point is known as the loading point. फिर उसको वहां तक बक करके धीरे धीरे स्कीडर्स मतलब उसको बर्फ पे फिसला के लोडिंग पॉइंट तक ले जाते हैं। ये काम किसका होता है? स्कीडर्स का। नाउ हॉलर्स और रिवर ड्राइवर्स। अब हॉलर्स और रिवर ड्राइवर्स क्या है उनको हम लोग देख लेते हैं। When spring approaches, जब स्प्रिंग आता है, जाड़ों के बाद जो स्प्रिंग का मौसम आता है, the river thaw and the haulers or drivers pushes the bundles of logs into the river. वो उन बंडल्स लॉग्स लकड़ी के बोटों को पानी में ढकेल देते हैं। Nowadays logs are pushed into the river by machines. लेकिन आज के समय में हम देखते हैं वो मशीन्स के द्वारा अंदर डाले जाते हैं, लेकिन पहले वो मैनुअली होता था। Sometime the bundles of logs get इंटरलैग्ड एंड क्रिएट अ लॉग जैम्स। कभी कभी वो लॉग जैम्स लगा देते थे, मतलब बहुत सारे लॉग्स जो हैं एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, जिसकी वजह से वो नदी में बह नहीं पाते थे। द हॉलर्स हु वियर द स्किड बूट्स दे कैरी अ लॉन्ग पॉइंट पोल्स ब्लास्ट द लॉग्स विद डायनामाइट्स टू फ्री द लॉग जैम्स। और वो फिर उसको डायनामाइट से वहां पे बहुत तेज से ब्लास्ट करते थे, जिसकी वजह से वहां पे लॉग जैम छूट जाता था। नाउ These days, however, the timber is almost transported by the railroad. लेकिन आज के समय में जो टिम्बर है वो रेल रोड के थ्रू ट्रांसफर किया जा रहा वन प्लेस से अनदर प्लेस। तो नाउ दीज आर द 4 टीम्स। नाउ द फर्स्ट टीम इज द हाई रिगर्स। नाउ द सेकेंड टीम इज द सॉयर्स और बकर्स। थर्ड टीम इज द स्काइडर्स एंड द फोर्थ टीम is the haulers or reverse drivers. Okay students, now thank you. Now in the next video we are going to understand about the another work of the lumberjacks.